Namaskar. I pray the divinity into you. Okay. দেখুন করোনা মহামারীতে এখন অক্সিজেন যত কমই আছে তারই জন্য এটা ইনফেকশন হচ্ছে আমাদের লাংসে। সব থেকে প্রথম অ্যাটাক হচ্ছে লাংসে, এখান দিয়েই আমাদের যত ডিজিজ আছে, ইনফেকশন আছে, এই পুরো বডিতে যাচ্ছে। এটা পুরো নার্ভটা উইক হয়ে যাচ্ছে আর এটা ফাইট করতে পারছে না। উইদিন 2 to 3 days এটা অ্যাটাক করে দিচ্ছে। তাহলে আমাদের যোগ মাধ্যমে আমরা শুরুয়াত করব লাইট এক্সারসাইজ। সেকেন্ড থাকবে সূর্য নমস্কার। থার্ড যেটা থাকবে সেটা থাকবে আসন অ্যান্ড লাস্টলি প্রাণায়াম। তাহলে আমি এখন লাইট এক্সারসাইজের ডেমনস্ট্রেশন দেব আপনাদের। সব থেকে প্রথমে আমরা শুরুয়াত করব ফ্রম টো টু হেড। সেটা এখান দিয়ে আমরা একে টুইস্ট করব, এটা 10 টাইমস। সেকেন্ড, থার্ডে যেটা থাকবে লেফট টু রাইট ক্লকওয়াইজ। and anti-clockwise 10 times each. তারপরে একে আমরা একটু হালকা করব। এইখানে 4টে এক্সারসাইজ হলে আমরা এখানে হালকা করব এমনি 20 to 25 টাইমস। We are doing light exercises right now. तारपोरे चक्की आसन, नाभि के ऊपर से जाते हुए पैरों से घुमाते हुए स्ट्रेचिंग 10 times each. And then anti-clockwise. आप लोग भी घर पे कर सकते हैं। अभी शुरुआत करिए। हम लोगों का बॉडी एक्सरसाइज करने से खुश होता है। दे आर हैप्पी व्हेन यू डू एक्सरसाइज फिजिकली, मेंटली, विथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिर उसके बाद ये टो से कमर तक का हुआ। अब हम लोग अपने लंग्स में हवा भरेंगे। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन, द लेस चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज़। अगर आप लोगों को हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके का कोई पेन है तो आप लोग प्राणायाम हो, आसन हो, सूर्य नमस्कार हो, कृपा करके धीरे धीरे करिए। नो हरी नो वरी। और जितने भी यंगस्टर्स हैं, हमारे जवान भाई बहनों, आप लोगों को जल्दी जल्दी करना है, स्टेमिना बनाना है, खुली जगह पे करना है, मोर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अभी ये जो आसन हम लोग कर रहे हैं, इससे हम लोगों का जो हिप बोन है ये फ्लेक्सिबल होता है। ऐसे देखिए,
And lastly, for the lower portion of body, butterfly, the awakening of Kundali. It's help you a lot. Kundali जागरण में butterfly. Twisting of the palm. आँख बंद करके हम लोगों को कंसंट्रेशन करना है, ये हाथ जो खुल रहा है और बंद हो रहा है 50 टाइम्स। जिनके भी हाथ में, कंधे में फ्रोज़न शोल्डर है, उन्हें ये एक्सरसाइज करने से बहुत ही आराम है और स्ट्रेंथ भी आता है। ये सामने से हाथ घुमाते हुए पीछे से लाना है और ये हमारा अपलिफ्ट करते समय ये लंग्स बहुत ज़्यादा खुलता है, तो इसमें ऑक्सीजन इनटेक बहुत अच्छा होता है। ऐसे और जो जवान है वो ज़ोर ज़ोर से करे ऐसे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत आसान है, ये आप कभी भी कर सकते हैं। बैठे बैठे আপনারা বাড়িতে বসে করতে পারেন, বা মর্নিং हो, ইভিনিং हो, নাইট हो, আপনাদের খুব ভালো। এটা একটা স্ট্রেচিং হয়, স্ট্রেংথ আসে, ডেলটয়েড মাসলও আছে, শোল্ডার আছে, একে রিল্যাক্স দেওয়ার জন্য সেটা করতে পারেন। আর আপার রিজিয়ন অফ চেস্ট আছে, এ পুরো উপর অবধি আপনার অক্সিজেনটা আসে। আর এটা আপনার ডায়াফ্রাম আছে, এখানেও অনেক হেল্প করে এই এক্সারসাইজ। এই আসনটা এখন যেটা করছি 10 সেকেন্ড 3 টাইমস with right hand and with left hand, alternate. It calms your body, अपना बॉडी के বা মন খুব শান্ত করে। এটা আপনি নিশ্চয়ই এখন ট্রাই করে দেখতে পারেন। Light exercises is a must before you start any kind of exercise, pranayam, asan. একটা প্রশ্ন আছে, তার স্পন্ডিলাইটিস আছে, তার জন্য যদি কিছু আসন থাকে। স্পন্ডিলাইটিস জন্য আপনার দুটো কথা আছে। প্রথমে
নিউজ পেপারটা আমরা যা রিডিং করি, স্পন্ডোলাইটিসে আমাদের নেকটা একটু হার্ট হয়, তাহলে আপনাকে নিউজ পেপারটা আর ইউজিং অফ মোবাইল ফোন এই দুটো স্টপ করতে হবে। কেন কি আজকের ডেটে আমরা মোবাইল যা দেখি সারা দিন এমনি, আজকে দিনে কালে আপনি মোবাইল দিয়ে যত দূরে থাকবেন আপনার ইমিউনিটি আরও স্ট্রং হবে। সারাদিন আমাদের যা এনার্জিটা যাচ্ছে মোবাইলে পুরো ড্রেন হয়ে যাচ্ছে, পুরো নেক পেন হয় বা আমরা ঘুম করতে পারি না। মোবাইল সকালে ওঠেই মোবাইল, আর পুরো দিন আমাদের এনার্জিটা মোবাইলে চলে যাচ্ছে, পুরো লাইফে মোবাইলে চলে যাচ্ছে। আপনি একটু মোবাইল অ্যাভয়েড করবেন, আই লেভেল ওপরে দিয়ে বেশি তাকাবেন না বা বেশি নিচুনে তাকাবেন না। পিলো ইউজ করতে হবে। তারও একটা ভালো জিনিস দেখাচ্ছি, ওইটা আপনার স্লিপিং পজিশনটা, স্পন্ডিলাইটিসে স্লিপিং পজিশনটা আপনার নিয়ে চলতে হবে। আমি আপনার দেখিয়ে দিচ্ছি আর আপনার অনেক হেল্প হবে। সব থেকে বেস্ট পজিশন যা স্লিপিংয়ে আছে সেটা লেফট, এমনি नी ऊपर नी, टकना के ऊपर टकना, हाथ इधर और माथा इधर, इधर एक पिलो रहेगा। डू नॉट स्लीप विदाउट पिलो, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस होता है, माथा नीचे जाता है तो ब्लड माथे में जाता है, तो इसको हमेशा लेवल पे रखना है। ऐसे हाथ ऐसे एक ही पोजीशन में सो सकते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड तो फिर आप ऐसे सोए। Keep distance between your feet from 1 to 2 feet and hand relax. Same position with right. आज के दिन में जो लोग ऐसे सो रहे हैं, तकिया लगा ले रहे हैं, ऐसे सो रहे हैं या ऐसे सो रहे हैं, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम है। इसमें हम लोगों का बॉडी ना ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करता है, बहुत ज़्यादा सपना देखता है, उसे कहते हैं सपना दोष। और राइट साइड इसलिए मना किया जाता है क्योंकि लेफ़्ट साइड में हमारा स्टमक है, तो हमारा जो खाने का डाइजेशन भी होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है। अगर आप राइट साइड करते हैं तो वो सुबह तक अनडाइजेस्टेड रहता है, आपको गैस्ट्रिक का बीमारी आता है। आपका पैनक्रियस है, लीवर है, जो जूस सीक्रेट करता है डाइजेस्ट करने के लिए, उसमें डिस्टर्बेंस आता है। तो स्लीपिंग पोजीशन दिखा दिए। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ एक्सरसाइज है जो आप धीरे धीरे करें। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। व्हेन यू स्टार्ट ब्रीदिंग, गो राइट, फिर धीरे धीरे आप अपनी जगह पे आ जाए। द सेम विथ लेफ्ट। ये पोजीशन आपको 3-3 बार करना है। फिर उसके बाद हम लोग डाउन जाएंगे। व्हेन यू ब्रीद आउट, गो डाउन, टच योर चेस्ट रीजन विथ योर चिन। फिर सांस लेते हुए नेक से पीछे टच करना ऐसे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। ये आसन आप 3 बार करें। फिर हम लोग राइट से शुरू करेंगे। राइट ईयर से हम लोगों को शोल्डर छूना है। सांस छोड़ते हुए कानों से शोल्डर टच करें धीरे धीरे। आंखें बंद और कंसंट्रेशन जो आप कर रहे हैं।
ये आप खड़े होके भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगेन गो डाउन वाइल ब्रीदिंग आउट। धीरे धीरे नेक को शोल्डर से टच करते हुए सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर इधर से रिटर्न। सांस छोड़ते हुए नीचे। ये स्पॉन्डिलिटिस के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको है तो स्लीपिंग पोजीशन अपना ठीक करें, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बंद करें, न्यूज़पेपर यूज़ करना बंद करें। अगर आपको पढ़ना भी है तो आप आई लेवल पे वॉल पे उसको पिन करके आप रीड कर ले तो बहुत अच्छा। टीवी भी ज़्यादा हाइट ऊपर नहीं नीचे नहीं, एकदम आई लेवल। आप आई लेवल पे कुछ भी करते हैं दैट विल हेल्प यू अ लॉट, वरना आपका पूरा बॉडी का जो फंक्शन है जो भगवान बनाया है वो पूरा मैल फंक्शन होता है। और एक बार जब मैल फंक्शन होता है आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना उठने में, ना खाने में, ना सोने में, ना बात करने में, ना चलने में। ये भगवान का बनाया हुआ है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। आप इसको डिस्टर्ब करेंगे ये आपको डिस्टर्ब करेगा, आपका हर काम डिस्टर्ब होगा। तो आप इसको जितना ज़्यादा खुश करेंगे उतना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, लाइफ में सक्सेस को अचीव करेंगे। तो ये 2-3 टिप्स था छोटा सा जो आप करेंगे। ये छोटी छोटी जो बातें होते हैं ना, ये आपको लाइफ में बहुत ऊपर लेके जाएंगे। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, छोटे छोटे बातों का ध्यान रखेंगे, वो आपको उतना ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। और एक एक्सरसाइज है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइट एक्सरसाइज में भी आप डेली करें और जिनको स्पॉन्डिलिटीज़ है वो भी करें। ये हाथों को माथे के पीछे रखते हुए सांस को लेते हुए हम लोगों को टिल्ट होना है ऐसे। फिर सांस लेते हुए पीछे जा कर के होल्ड। तीन बार करेंगे। फिर राइट चेक, नाउ लेफ्ट चेक। इसमें आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं अपने हार्ट बीट में, जो कि आप ये हाथ रख के आप अपना पूरा हार्ट बीट अपने चेहरे से पूरा आप फील कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट। और अभी ये कपाल में रखते हुए ऊपर कम से कम 10 सेकंड करके 3 बार करें, मन चित्त आपका शांत हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करना है।
अभी इस रीजन पे शायद हम लोगों में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि यहाँ तक ऑक्सीजन आप ला सकते हैं। तो इसको जब आप लिफ्ट करते हैं अपने ईयर तक ऐसे, तब आपका ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली ये भरता है और आप ऑक्सीजन को इनटेक करिए ऐसे, देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करिए, इसे होल्ड भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा देर। तो ये आपका क्या है, लंग्स को एनलार्ज करेगा, ये फेफड़ा आपका और बढ़ा देगा, ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक। जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन इनटेक करेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे। ये देखिए, ये 10 टाइम्स क्लॉक एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा लाइट एक्सरसाइजेस यहाँ पे समाप्त होता है। और भी बहुत है, आप इतना से शुरू करें, वीडियो अपलोड होगा, आप इसे देख के बार बार करें, डेली करें। जब तक आपको इसका अभ्यास नहीं होता है आप इसे करते रहें, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सूर्य नमस्कार, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप होगा, इसमें टोटल 13 स्टेप हो रहा है। तो बहुत लोगों को जिसमें प्रॉब्लम हो तो वो उसे स्किप कर सकते हैं। प्रणाम मुद्रा में हम लोग आते हैं। अष्टांग योग जो है, आप ये पैर को इसे भी बनाए ऐसे, तो इससे आपको मिलता है सपोर्ट। जिनको कमर में दर्द है वो पीछे ना मुड़े, वो सिर्फ इधर तक। और जिनको कमर में दर्द ना हो वो पीछे झुक सकते हैं जितना ज़्यादा। और जो जवान है वो तेज करें। स्टेप बाय स्टेप एक बार आप सुन ले, सांस लेते हुए निकाले, फिर सांस लेते हुए हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए अपने माथों को नी से टच करें, फिर सांस लेते हुए शेर के आसन में आ जाए ऐसे। सांस छोड़ते हुए अब आप पहाड़ बन जाए। ये इजी वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे ऐसे। फिर नीचे जब आपको जाना है, टच नहीं करना है जमीन को, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर एक बार पहाड़ बन जाए, फिर बाएं पैर को सामने लाते हुए सांस लेते हुए, फिर ऐसे। ये कम से कम आप लोग 10 बार शुरुआत करें, 20 बार, 25 बार, 50 बार आप लोग जा सकते हैं।
और जो जवान है वो तेज तेज करें। तेज मतलब 1 मिनट में 3 बार से 5 बार भी होता है। ये हो गया सूर्य नमस्कार। 3-4 आसन दिखाते हैं जिनको डायबिटीज है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, खाना पचने में उनको तकलीफ़ है, शुगर है, ओबेसिटी है, नींद नहीं आती है, वो लोग मंडूक आसन, शशांक आसन या शशक आसन ज़रूर करें। और जिनको कॉन्स्टिपेशन भी है उनको ये बहुत हेल्प करेगा। डेली सुबह खाली पेट, ये देखिए, ये हो गया। सांस पूरा अंदर भरते हुए बाहर निकालना है। फिर इसे ऐसे हमें अपने बेली रीजन में इधर पे रख के नीचे झुकना है। सांस को पूरा बाहर निकाल के जितना देर तक आप होल्ड कर सकें। थोड़ा खाना खाया हुआ हूँ इसीलिए कर नहीं पा रहा हूँ। जब सुबह खाली पेट आप रहते हैं तो 30 सेकेंड ये कम से कम होल्ड होता है। और आशा करता हूँ नेक्स्ट टाइम आप लोग भी अर्ली मॉर्निंग क्लासेस के लिए प्रेस करेंगे ताकि मैं अर्ली मॉर्निंग आके आपको योगा करवा सकूँ। तो ये हुआ मंडूक आसन। इसमें आप कम से कम 3 से 10 बार करें। तो इसी का जो सेकेंड स्टेप होता है सेम होता है। सांसों को बाहर निकालते हुए नाभि के ऊपर ये रख के बायां हाथ नीचे, उसके ऊपर दाहिना हाथ रखते हुए हम लोगों को सांस निकाल के ऐसे होल्ड करना है। एक बार फिर बता रहा हूँ, लंबी गहरी सांस लेनी है। पेट को अंदर खींचे। बायां हाथ इसके ऊपर दाहिना हाथ रखते हुए अंदर इसे दबाते हुए नीचे। इसके बाद आपको करना है शशक आसन या शशांक आसन। लंबा गहरा सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए माथे को जमीन से लगा लेना है ऐसे। कम से कम ये आसन आप 2 से 5 बार करें। बहुत ज़्यादा परेशानी है, चिंता है, यूज़लेस थॉट है, नेगेटिव थॉट है, तो योग के मार्ग पे आए
और पॉजिटिविटी का आनंद उठाएं। एक बार और दिखा रहा हूँ आपको। मंडूकासन, शशकासन, इसके बाद वशिष्ठ। क्वेश्चंस है, हम लोग हमारे ब्लॉग ऑफ मार्क्स बोलने से कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा है। 1 मिनट बाद अभी जो क्वेश्चन है। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। একজন বলছেন, জিজ্ঞাসা করছেন যে এই করোনাতে তো আমরা মাস্ক পরছি বা অন্যান্য হাত ধুচ্ছি, হাত এর বাইরে কি কিছু প্রাণায়াম বা কিছু আছে যাতে আপনি বলেছিলেন অক্সিজেন লেভেলটাকে কিভাবে বাড়ানো যায়, তো ওটাকে একটু রিপিট করে দিন। যে কোনো একজনের প্রশ্ন ছিল যে এই করোনাটাকে আমরা দূর করতে গেলে কি প্রাণায়াম করব বা কি এক্সারসাইজ করব যাতে অন্তত টু সাম এক্সটেন্ট বাড়ে। देखिए, पहला बात तो आप ये जान लीजिए कि आपको एक्सरसाइज या इसका जो रियल वर्ड है संस्कृत, इसे कहते हैं योग। ये मॉडर्न सोसाइटी जो है ये योग को कर दिए योगा। तो आपको योगा नहीं, ये योग के मार्ग पे आना है। आप एक्सरसाइज बोलिए, जिम जाइए, योग करिए, कुछ भी करिए, मगर ये आपको डेली करना है। इसको पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसके बिना जी नहीं सकते, वैसे ही एक्सरसाइज करना है। तो आज के डेट पे जो फिज़िकली जिनका कॉन्ट्रैक्शन है वो इसको और बेहतर कर रहे हैं, तो उनको तो कोरोना नहीं है। बट जो लोग फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं है किसी भी चीज़ में, उनको ज़्यादा पकड़ रहा है। तो आप घर पे ना बैठे, आप बाहर निकलिए, वॉक करिए, छत पे जाइए, कुछ करिए, समाज के लिए कुछ करिए, अपने लिए कुछ करिए, कुछ करिए। बैठिए मत और सोचिए मत, सबसे पहला बात। दूसरा बात, फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट तो आपको लाना है, घर पे नहीं बैठना है। तीसरा बात, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो करना है वो मैं आपको 2 मिनट में अभी सब दिखा दूंगा। चौथा, जो मास्क आपको पहनना है वो तो पहन के निकलना ही है। आप इन्फेक्टेड नहीं हो, बाकी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, माइट भी आपको वो इन्फेक्शन आ गया, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसा हम लोग का थॉट है। वेरी नाइस, पॉजिटिव थॉट। मगर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी कह रहे हैं सबको 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो जितना ज़्यादा आपसे ये मेंटेन हो पाए डिस्टेंस रख करके, और मास्क अभी कहा जा रहा है डबल मास्क पहने, ठीक है। इसके साथ ही आपको खाना पीना में भी आना होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको खाने के भी ऊपर बोलूँगा। तो अभी आप मास्क पहने, हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोए, सैनिटाइज़र जितना कम आप यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू मी वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये हाथों से ही शुरू हो रहा है। ये हाथ, हम लोग इसी से प्राणायाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोग को प्रणाम कर रहे हैं। तो इसका इज्जत करें, इसमें बार बार अल्कोहल केमिकल डाल के आप अपना नर्व को ना सुखाएं। बहुत हो आप साबुन से हाथ धो लें, और बहुत इमरजेंसी आप घर पे नहीं हो, फ्रेंड के घर पे नहीं हो, ऑफिस में नहीं हो, कहीं बाहर हो जहाँ कोई साधन नहीं है, जल्दी में है, तो फिर आप सैनिटाइज़र ले करके अपने हाथ में मल लिए, तो साबुन का इस्तेमाल करें, मास्क पहने। हाँ, इसके ऊपर 2 बात और है। अगर आप एसी में हो तो एसी में क्या है कि इसका फ़िल्टर आप चेंज करते रहिए, इसको सफाई करते रहिए, क्योंकि एसी क्या है वो इसको बार बार रिफ़िल कर रहा है। तो एसी से कोरोना का कोई संबंध नहीं है, इससे कोई तकलीफ़ नहीं है, ये इसको रिफ़िल कर रहा है ऑक्सीजन को रूम में। अगर एसी नहीं है, कमरा बंद है, आप मीटिंग में हो या घर के लोगों के संग हो, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस है कि जंगला दरवाज़ा खोल के रखे, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, कुछ भी हो। तो इसे खोल के रखेंगे तो ऑक्सीजन जितना ज़्यादा फ्रेश आएगा वो आपके लिए अच्छा है। बंद कमरा में रहना, आप समझ लो आप अपने आप को खुद इन्फेक्ट कर रहे हो। तो ये 2 बात है। और गर्म में जितना ऑक्सीजन बाहर से जो आ रहा है, जो गर्म है, ये मत समझो आपका तबीयत ख़राब होगा, आपको लू लगेगा। क्यों? वो सनरेज जितना देर है, और कलकत्ता में आज के डेट में 39 डिग्री है। इस मंथ, इस वीक सबसे ज़्यादा गर्म गया 39 डिग्री।
तो ये कोरोना को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। आप बाकी अन्य शहर में देखो, सिटी में देखो और कोलकाता में देखो, केसेस बहुत ज़्यादा कम है। इधर तो समुंदर भी दूर है और दूसरा इधर का वेदर भी बहुत प्लीजेंट है, जो अभी हम लोगों को हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक पेन से रिलीफ करना कैसे? देखो, बैक पेन आपका जो है यहाँ पे, इसके लिए बहुत ही इजी आसन है, बहुत ही इजी। ये आप अभी ट्राई करो, 3 बार करो 30 सेकंड के लिए, अभी आपको बैक पेन से रिलीफ हो जाएगा। पहला तो आप ज़्यादा झुको नहीं सामने ना पीछे, और हेवी वेट अभी आप मत उठाओ। अगर आप जवान हो तो ठीक है, अगर आप थोड़ा ओल्ड एज हो, आपका वेट ज़्यादा है, तो वेट आपको कम करना होगा। जब तक वेट कम नहीं करेंगे, अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो हमारा बॉडी का एक शक्ति है, वो उतना केपेबल नहीं हो पाएगा, तो आपको पेन देगा। तो आप हेवी लिफ्टिंग नहीं करो। अगर आप कुछ हेवी उठा रहे हो, मत उठाओ। सामने नहीं झुको, एकदम नहीं, पीछे भी नहीं झुको। और ये आसन आप 3 बार अभी कर लो। ये भुजंग आसन, ये आप ऐसे सो जाओ, दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखो, एकदम सटा के ऐसे, और सांसों को लेते हुए ऊपर उठो। ये ऐसे आप 3 बार से 6 बार कर सकते हो, सांस लेते हुए ऊपर। अगर आपका एज थोड़ा ज़्यादा है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है, तो फिर आप धीरे धीरे ऐसे, और ऊपर देखो। इसका एक और है, ये हाथ आप ऐसे रखो, इसके ऊपर आप ऐसे उठो। इसमें आपका हाथ पूरा खुलेगा, सपोर्ट भी ज़्यादा मिलेगा। जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो वो धीरे धीरे करें ऐसे। और बैक पेन के लिए ऐसे, इसमें 30 सेकंड आप होल्ड करो। तो फिर इसमें आपका जितना भी पेन है, वो सारा पेन चला जाएगा। आप अभी ट्राई करके देख लो। इसे कहते हैं भुजंग आसन। नेक्स्ट অনেকেই বয়স্ক, তো তারা বসতে পারে না। আমরা দেখি বিশেষ করে মায়েদের ক্ষেত্রে, তো ওদের হাঁটুর প্রবলেম ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে, একটু চেয়ার ছাড়া বসতে পারে না, মেঝে বসতে পারে না। বয়স্ক যে ভদ্রমহিলারা আছেন, তাদের জন্য যদি হাঁটুর কিছু প্রবলেম, नी प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे आयुर्वेदिक में नी का तो बहुत इलाज है। अगर आपके घर के पास में अगर क्लिनिक है आयुर्वेद, तो आप वहाँ से जाके दवा ले लें। आप सिर्फ इतना बोलेंगे मेरे नी में पेन है, तो सबसे पहला वो जो आपको दवाई देते हैं वो है गिलोय। तो गिलोय ये आपके लिए रामबाण होगा। ये बहुत ही अच्छा दवाई है, क्योंकि गिलोय जो चीज़ है, ये तो एक इंडिया में पाया जाता है। और आपके पूरे बॉडी में जितना लीगामेंट है, लीगामेंट क्या हो रहा है, हमारे हड्डियों को ऐसे पकड़ के रखता है। तो अगर आप एलोपैथी में जाते हैं, तो वो तो डायरेक्ट बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट करा लो। हमारे आयुर्वेदिक में अगर आप घर पे हो, कहीं नहीं जा पा रहे हो, कोई भी समस्या हो, तो आप गिलोय या तो बाज़ार से ले आओ, या तो बहुत ही अच्छा होगा आप किसी रिनाउंड ब्रांड का खरीद के ले आओ टैबलेट के रूप में। आप दिन में 3 बार खाओ, 3 बार आप खाओ, 2-2 टैबलेट करके खाओ। बहुत ज़्यादा है, अगर आपको तकलीफ़ है 2-2 टैबलेट करके आप खाएं, 1-1 टैबलेट करके खाएं। आपको फ़ायदा खुद समझ में आ जाएगा। वो क्या करेगा, हमारा जो जेल है, इधर नी में जो जेल होता है,
इधर पे जो जेल होता है वो सूख जाता है, किसी कारण बन नहीं पाता है, तो फिर क्या होता है इधर कॉन्ट्रैक्शन में वो पेन देता है, लोग चल नहीं पाते हैं। हालांकि चल सकते हैं बट वो जेल नहीं है, तो अगर जेल नहीं है तो वो चल भी नहीं सकते हैं। ये हमारा जो हैंड भी फोल्ड हो रहा है, यहाँ पे जो लीगामेंट है उसमें जो जेल है यहाँ पे, तो ये फिंगर्स है यहाँ का, अगर जेल अगर सूख जाता है तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, नर्व हमारा डैमेज होता है। तो गिलॉय का एक नहीं 100 फ़ायदा है, तो आप गिलॉय का इस्तेमाल करिए। बहुत सारा तेल भी आ रहा है वो भी लगाए, और सबसे बेस्ट होगा कि आप इसका एक्सरसाइज में देखिए, ये बाहर से नहीं, ये एक ऐसा चीज़ है जो अंदर से ठीक होगा। इसको बाहर से आप तेल लगा सकते हैं, कोई भी तेल लगाए, ऐसा कुछ नहीं है कि यही तेल लाना होगा, पेन वाला तेल लाना होगा। अगर पेन रिलीफ भी अगर आप लाते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए आराम देगा, बट एक्चुअली में जो आपका प्रॉब्लम है जेल का, जो यहाँ पे जेल आपका सूख गया है, जो हड्डी आपका घिस गया है, तो जो हड्डी घिस गया है उसके लिए अगर आपको शुगर नहीं है तो शुगर केन का जूस पिए, गन्ना का रस पिए डेली सुबह खाली पेट। उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, जो कि आपको इधर पूरे बॉडी में जितना भी आपको वीकनेस है उसको पूरा करेगा। और दूसरा, आप गिलॉय का सेवन करें। इसका एक्सरसाइज कोई नहीं है, इसका एक्सरसाइज यही है, डंड मारिए, चलिए, जितना ज़्यादा आप चलिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, उतना ज़्यादा आराम मिलेगा। तो घुटने का कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये ऐसे ही है। तो आप घर पे बैठे बैठे इसको ऐसे करो, कॉन्ट्रैक्शन करो, ये करो, इसका यही एक्सरसाइज है, क्योंकि ये इसको आप कुछ फोल्ड नहीं कर सकते हो। तो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाए, वो गिलॉय के संग में अश्वगंधा आपको देगा, शतावर देगा, इम्यूनोग्रिड देगा, ये सभी 3-4 औषधि मिला के, तुलसी है, ये सब मिला करके आपको देगा, और आप इसे खाएं, इसका सेवन करें, और कुछ हद तक तो आपको आराम मिलेगा ही। 2-3 महीने 4 महीने में आपको इसका पूरा रिकवरी मिलेगा। एक्सरसाइज करने का टाइम, अच्छा का टाइम, एक्सरसाइज करने का द बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज इज अर्ली इन द मॉर्निंग, नो आफ्टरनून, नो इवनिंग, नो नाइट, नो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि जितना सुबह आप उठते हो उतना ज़्यादा आपको शांति रहता है। शांति इन द सेंस रहता है कि हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट नहीं होता है, क्योंकि ना तो तब साउंड पॉल्यूशन होता है, नो नॉइस पॉल्यूशन, नो एयर पॉल्यूशन, तो ज़्यादा शोर भी नहीं है, एयर में भी ज़्यादा शोर नहीं है। तो उसमें क्या है, आपको बहुत ही शांति भावना से चित हो के जो आपको ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे बंद कमरे में, तो एक्सरसाइज मत करना। अगर कोई आपको उपाय नहीं है तो बंद कमरे में कर रहे हो तो फिर अलग बात है। अगर आपको रास्ता है कि आप छत पे करें, बैल्कनी में करें, तो फिर वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो थम्स अप है, क्योंकि खुले जगह पे आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। जितना ज़्यादा आप ऑक्सीजन लोगे उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे। जितना भी हम लोगों का पाइनियल ग्लैंड है एक्टिवेट हो रहा है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये सब आपका एक्टिवेट होता है, जूस सिक्रेट करता है, उससे आप खुश होते हो। तो ये सबको एक्टिवेट करने के लिए आपको खुले जगह पे योगा करना होगा, या तो आप पार्क में जाओ, बाहर जाओ, छत में जाओ, बैल्कनी में जाओ। तो आप अर्ली मॉर्निंग करो, 9 बजे तक करो, उससे लेट नहीं करना। और अगर आप 6 बजे कर रहे हो, 5 बजे कर रहे हो, 8 बजे तक कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। और धूप में आप करो तो जितना भी विटामिन का कमी है तो विटामिन आपको धूप में सब मिल जा रहा है कंप्लीट। खाना से जिनको नहीं मिल रहा उनको धूप से पूरा मिल जाएगा। वो एलोपैथी दवा आपको नहीं खाना होगा। ऐसे तो प्रॉब्लम है ना, धूप नहीं लगाया। नहीं, अगर आप सोच रहे हो कि ये हमारा रंग काला नहीं हो, सनस्क्रीन लोशन लगा के जाए, तो सनस्क्रीन लोशन जो आप लगा रहे हो तो आप ये बात जान लो, उससे आपको रिंकल्स जो होते हैं ना, रिंकल्स, फिर बाद में वो रिंकल्स क्रीम भी देते हैं। तो वो उनका धंधा है, सॉरी बिजनेस है, कि पहले आपको रिंकल लाने का दवा दे रहे हैं। वो सनस्क्रीन लोशन, नाइट लोशन, मॉर्निंग लोशन, ये सब जो लोशन दे रहे हैं इससे आपको रिंकल्स आ रहा है, और फिर बाद में वो लोग
एज मिरेकल, एज रिंकल, क्या क्या क्रीम वो लोग आपको महंगे महंगे दवाई दे रहे हैं। तो देखिए मैं कोई क्रीम नहीं लगाता हूँ, मैं योगा करता हूँ, नो नाइट क्रीम, नो सनस्क्रीन लोशन, नथिंग। खाली एक फेस वॉश आता है, वो भी आयुर्वेदिक ढंग से, या मुलेठी की जो मिट्टी है उसको लगा करके मैं कर लेता हूँ। हल्दी लगा लो, बेसन लगा लो, कुछ भी लगा लो। अभी तो मैं कुछ भी नहीं लगाता हूँ फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर, कुछ भी नहीं, नथिंग। नेक्स्ट संडे की हम लोग 8 बजे से सुबह 8 बजे से। हाँ, नेक्स्ट संडे से हम लोग सुबह 8 बजे से योगा करेंगे। अगर आप और जल्दी उठोगे, आपको करना सिर्फ ये है, शाम को शाम को 7 बजे आप क्या करो, शाम को, ये अभी चल रहा है क्या, लाइव है? लाइव है। तो शाम को 7 बजे के बाद आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, शाम को 7 बजे के बाद खाना खाना आप लोग छोड़ दीजिए। ये बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। मैं अपना बता रहा हूँ, अगर मैं 6:30 बजे तक डिनर किया तो मैं किया, 6:30 बजे के बाद मैं डिनर नहीं करता। चाहे वो मेरी मम्मी हो, पापा हो, अपने हाथ से बना के ला के रखे, नहीं करिए, डिसिप्लिन बनाइए। 7 बजे के बाद हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे। और ये जो रात का डिनर है बहुत लाइट, अगर आप इतना खाते हो तो इतना खाओ, कुछ खाने को नहीं है तो आप गाय का दूध पी लीजिए 1 गिलास, बहुत ज़्यादा भूख है 1 गिलास और पी लीजिए, हल्दी डाल के पी लीजिए, कमजोरी है अश्वगंधा ले लीजिए, शिलाजीत ले लीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मगर 7 बजे के बाद आप खाना ना खाएं, वो अनहेल्दी है। जितना बीमारी आ रहा है आप याद रखिए वो इधर से आ रहा है, 100 से ज़्यादा बीमारी इधर से आ रहा है। आप जो लेट से खा रहे हैं वो आपको रात भर सोने नहीं दे रहा है, आपको नींद आता है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। उससे क्या हो रहा है, आपका स्लीपिंग ड्यूरेशन बढ़ जा रहा है, कम नहीं रहा है, बढ़ जा रहा है। उससे आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठ रहे हो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। आप सुबह जल्दी उठो, आधा दिन चला जा रहा है, फिर क्या करोगे आप उठ के? कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही लाइफ है, आपको लग रहा है कितना लाइफ है, भूल जाइए। अभी ये लाइफ है, ये लाइफ में प्रेजेंट में रहना है। तो एक रिक्वेस्ट है आज मेरा पर्सनली, 7 बजे के बाद आप लोग खाना ना खाएं, वेज खाना खाइए, सैलेड खाइए, फ्रूट सैलेड खाइए जिसमें वाटर लेवल कम हो, जैसे बनाना अवॉइड करिए, और भी बहुत सारा है, वाटरमेलन अवॉइड करिए। रात को ज़्यादा से ज़्यादा 1 रोटी ग्रीन वेजिटेबल खाइए, कुछ नहीं है तो दूध पी के सो जाइए, और कुछ नहीं खाइए। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।